Understanding Social Science by Galaxy Publication. Today we are going to start with our chapter 4 Harappa Civilization. We will start what is civilization. The word civilization comes from the Latin word civic. किस word से आया है? The Latin word civic, which means the citizen of a city. किसी भी city के जो citizens होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Civilization. Civilized societies are characterized by relatively highly organized forms of economic, social, political, intellectual, architectural, artistic and religious life. If we talk about the civilized societies of civilization, so it means we always include economic, social, political and their religious life in that. Now we will read about the development of civilizations. The rise of agriculture was a major step in the development of civilizations. अगर हम बात करें civilization के development की तो agriculture played a very important role. Farmers settled in permanent villages. जितने भी farmers थे वो क्या करते थे? अपनी permanent and settled life जीते थे. Where they could grow enough food to support a few craftsmen and priests. जिससे वो क्या करते थे? लोगों को फूड सप्लाई करने में हेल्प करते थे और जितने भी प्रीस्ट होते थे उनको वो फूड प्रोवाइड कराते थे. पीरियोडिक फूड स्टोरेजेस लेड टू द इंक्रीज्ड ट्रेड अमंग विलेजेस. जितना भी फूड स्टोरेज होता था उससे क्या होता था? जितने भी वहाँ के लोग थे उनको प्रॉपरली ट्रेड करने में हेल्प होती थी. द विलेजर्स एक्सचेंज ग्रेन्स, पॉटरी एंड रॉ मटीरियल्स. जितने भी विलेजर्स होते थे वो क्या करते थे? रॉ मटीरियल का आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे. द इंट्रोडक्शन of copper and bronze proved a turning point in the life of people. लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कब आया था? जब उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. द डिमांड फॉर मेटल और इंक्रीज. जिससे क्या हुआ था? जितने भी मेटल्स हैं उनके डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था. एंड सम पीपल गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर ट्रेड. और जिससे क्या हुआ? लोगों का ट्रेड के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया था. ग्रेजुअली विलेजेस ग्रू इनटू सिटीज़. और धीरे धीरे क्या हुआ? विलेजेस जो हैं वो सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगे. रिलीजियस श्राइन्स एंड सेक्रेड प्लेसेस विच फ्लरिश एट सेरेमोनियल साइट्स बिकेम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स इन द एमर्जिंग सिटीज़. जितने भी हमारे रिलीजियस और सेक्रेड प्लेसेस होते थे उन्होंने क्या किया? जितनी भी हमारी सेरेमोनियल साइट्स होती थी उनको काफ़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स के साथ इंक्लूड कर दिया था. Now we will talk about civilizations of the world. We will see how many civilizations were there at that time. Several civilizations developed independently in various parts of the world. If we talk about the civilizations, so there were many civilizations developed at that time. The first one arose about 3500 BC in the Tigris-Euphrates Valley in the Middle East. अगर हम सबसे पहली वैली की बात करें जिसका डेवलपमेंट हुआ था, and it was time about 3500 BC and it was developed in Tigris Valley in the Middle East. Other civilizations developed in the Nile Valley in Egypt. और अगर हम दूसरी civilization की बात करें तो वो इजिप्ट में हुई थी. and the Indus Valley civilization in India. और Indus Valley civilization इंडिया में डेवलप्ड हो गई थी. and Northwest India at the Huanghe Valley in China. और अगर हम चाइना की बात करें तो जो हुआंगहो वैली है वो वहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी थी. Most civilizations developed near the banks of river or in the valleys of the rivers. अगर हम बात करें बाकी अदर civilizations की तो वो रिवर नाइल रिवर्स के आसपास जितना भी एरिया था वहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी थी. Therefore, they are also called river valley civilization. और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? river valley civilization कहते हैं. So now we will start with the Harappan civilization. So let's talk about it. The history of Harappan civilization dates from around 4600 BC. अगर हम Harappan civilization की history की बात करें तो वो 4600 BC से start होता है. There was the growth of villages and towns which developed into a culture known as the Harappan civilization. अगर हम Harappan civilization की बात करें तो इससे क्या हुआ? विलेजेस और जो टाउन्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला एंड इसी को हम हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इसे हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. बिकॉज इनिशियली मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स डिस्कवर्ड इन द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स
ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी डेवलपमेंट है, या तो वो हमारा इंडस रिवर के प्लेन एरियाज में हुआ है या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज वाले एरियाज में हुआ था. Now we will talk about sources of Harappan civilization. The information about the Harappan civilization comes from the reports of excavation at places like Harappa and Mohenjo-daro. अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो हमें जैसे हरप्पा और बाकी मोहनजोदारो के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर एक्सकेवेशन करके मिली थी. द एक्सकेवेशन एट हरप्पन बिगैन इन 1921. जो एक्सकेवेशन था, जो खुदाई का कार्य था, वो 1921 में किया गया था. Many Harappan settlements have been located and excavated since then. और तभी से बहुत सारे excavation works start हो चुके थे. Sir John Marshall and Sir Mortimer Wheeler have conducted excavation at Harappan settlements. अगर हम Harappan settlements की बात करें तो it was done by Sir John Marshall and Sir George Mortimer Wheeler. By now more than 1000 settlements bearing Harappan material have been discovered. और तभी से 1000 से भी ज़्यादा जो सेटलमेंट्स थे वो हरप्पन सिविलाइजेशन में देखे जाने लगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट हरप्पा एंड मोहनजोदारो. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हरप्पा. दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन वेस्टर्न पंजाब. अगर हम हरप्पन प्लेस की बात करें तो ये वेस्टर्न पंजाब के रावी रिवर के किनारे लोकेटेड है. इट रैंक्स एज द प्रीमियर सिटी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. और इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन का प्राइमर सिटी के नाम से जानते हैं. द ruins ऑफ द सिटी कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर. अगर हम इस सिटी के ruins की बात करें तो वो 5 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं. इन हरप्पा a substantial section of the population was engaged in activities such as administration, trade, crafts work और religion. अगर हम हरप्पा की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंशियल सेक्शंस थे जिनमें वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन अपने आप को एंगेज रखती थी, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ ट्रेड, क्राफ्ट वर्क और रिलीजन. नाउ वी विल टॉक अबाउट मोहनजोदारो. द सिटी इज़ लोकेटेड इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो एक ऐसी सिटी है जो कि इंडस रिवर के लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में लोकेटेड है. इट इज़ लार्जेस्ट साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. ये हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट मानी जाती है. एक्सकेवेशंस शो दैट द पीपल लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम एक्सकेवेशंस की बात करें तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक स्टे कर चुके थे. एंड वेंट ऑन बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग हाउसेज एट द सेम लोकेशन. और वो क्या करते थे, जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अपने हाउसेज और अपनी बिल्डिंग्स को रीबिल्ड भी करते रहते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट chief features of the Harappan civilization. Harappan civilization के क्या क्या chief features थे, we will read about that. Most cities of the Indus Valley were divided into two parts. जितनी भी वहाँ की cities थी वो कितने part में divided थी? It was divided into two parts. So let's read about it. In one part it was read citadel. उसके one part को हम citadel के नाम से जानते थे. Containing public buildings, religious structures, workshops and ग्रेनरी. जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, जितना भी हमारा पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं और ग्रेनरीज हैं. इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन सीटाडेल पार्ट. द रूरल एंड द रूलिंग क्लास प्रोबेबली लिव्ड देयर. वहाँ पर क्या रहते थे, जितने भी रूलिंग स्टेज थी या जितना भी रूलिंग सेक्शन था, किंग्स थे, वो सब वहाँ पर रहते थे. द अदर पार्ट कॉल्ड लोअर टाउन. उसी के दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोअर टाउन कहते हैं. इट वॉज अ लोअर हाइट बट मच लार्जर इन एरिया. वो एक काफ़ी ज़्यादा लो एरिया माना जाता था, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया देखने को मिलता था. द रूल्स एंड द पुअर लिव्ड इन दिस पार्ट. जितने भी रूलर्स और जो पुअर लोग थे वो वहाँ पर लोअर एरिया में रहते थे. नाउ वी विल सी द सीटाडेल एरिया कंटेन सम मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स. जितना भी सीटाडेल वाला एरिया था वहाँ पर मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे. अमंग दीज स्ट्रक्चर्स इज द फेमस ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो. और अगर हम वहाँ के ग्रेट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनमें से मोहनजोदारो वाज द वन ऑफ देम. दिस ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर मेजर्स 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप. अगर हम इस ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर की बात करें जो कि ब्रिक से बना हुआ था, सो इट वाज 12 मीटर लॉन्ग, राइट, 7 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप.
It is approached at either and by the flights of steps. और इसको हम क्या जानते थे, जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे करते थे वैसे वैसे इसका एंड होता जाता था. द बेड ऑफ द बाथ वॉज मेड वाटर टाइट बाय द यूज ऑफ बिटुमेन. और जितना भी हमारा बाथ वाला एरिया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, बिटुमेन के द्वारा. वाटर वॉज सप्लाइड बाय अ लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम. और अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें तो उसको एक वेल के थ्रू फिल किया जाता था. The water was discharged by a huge drain with a corbelled roof. अगर हम वाटर ड्रेनेज एरिया की बात करें कि उसको कैसे ड्रेन किया जाता था, so it was drained by a corbelled roof. The bath was surrounded by porticos and sets of room. वहाँ पर अलग अलग बाथिंग के लिए रूम्स बने हुए थे. Scholars generally believe that the place was used for ritual bathing of kings or priests. अगर हम स्कॉलर्स की माने तो उनका ये मानना था कि वहाँ पर जितना भी रिलीजियस या जो सेक्रेड बात होता है प्रीस्ट का, वहाँ पर उसको करने के लिए यूज़ किया जाता था. एट हरप्पा द ग्रेनरीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सीटाडेल. अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पर ग्रेनरीज जो होती थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मानी जाती थी. These granaries, rectangular in shape, stood close to the river so that the city dwellers, depending on these granaries for their food requirements, could get grain easily and cheaply. इन ग्रेनरीज का क्या यूज़ होता था कि जितने भी वहाँ पर लोग होते थे वो क्या करते थे, जो ग्रेनरीज पर डिपेंड थे अपने फूड के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो वहाँ से ईजिली उसको गेट कर सकते थे. ऑन द सदर्न साइड ऑफ द ग्रेनरीज ले सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मेंट फॉर थ्रेशिंग. और उसी के अगर हम साउथ वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या बना हुआ था, एक ब्रिक प्लेटफॉर्म था जिसको हम थ्रेशिंग के लिए यूज़ करते थे. द प्रेजेंस ऑफ furnaces close to the two-room workmen's quarters justifies that the Indus Valley people used copper, bronze, lead and tin to make different objects. अगर हम बात करें फर्नेसेस की तो उससे ये पता चलता है कि जितने भी वहाँ पर वर्कमैन होते थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और टिन का यूज़ करते थे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए. परहैप्स आयरन वॉज अननोन टू देम. जबकि आयरन उनके लिए उस टाइम पर काफ़ी अननोन था. दे डोंट नो अबाउट द आयरन टूल्स एंड वेपन्स. इन द लोअर टाउन मेनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मड मॉर्टर हैव बीन फाउंड. अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी जो कि ब्रिक से बनी होती थी एंड वहाँ पर मड का यूज़ भी किया जाता था. द एवरेज सिटीजन्स सीम टू हैव लिव्ड इन दीज ब्लॉक्स ऑफ हाउसेज. और जितने भी एवरेज सिटीजन होते थे वो इस ब्रिक से बने हुए हाउसेज में रहते थे. देयर वर वेरिएशंस इन द साइजेस ऑफ द हाउस. और उन हाउसेज के साइज में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता था. जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई. अगर हम हाउसेज की बात करें तो या तो वो 1 स्टोरी हाउस होता था या 2 स्टोरी हाउस होता था. ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड इट्स प्राइवेट कोर्टयार्ड विद रूम्स अराउंड इट. अगर हम हर एक हाउस की बात करें तो वहाँ पर अपना एक प्राइवेट कोर्टयार्ड होता था जिसके अंदर रूम्स बने होते थे. वेल, बाथरूम, ड्रेन्स एंड किचन. वहाँ पर क्या होता था, वेल बनते थे, बाथरूम्स होते थे, ड्रेनेज एरिया और किचन भी अवेलेबल होता था. The entrance to the houses was from the narrow lanes which cut the streets at right angles. अगर हम houses के entrance की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, जितनी भी streets है वहाँ से right angle पर वो cut बनाया जाता था. No windows face the streets. और street side पर कोई भी window नहीं बनाई जाती थी. Now we will talk about craft production. अब हम read करेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्राफ्ट वर्क करते थे. The Indus Valley people had made great progress in the field of art and crafts. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा आर्ट और क्राफ्ट की फील्ड में प्रोग्रेस की थी. इन इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर. देयर फर्स्ट वर्क वाज इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर. Many statues and figurines, both of man and animals, show us the great progress in the art of sculpture. अगर हम बात करें काफ़ी सारे स्टैच्यूज़ और जितनी भी फिगर्स हैं जो उन्होंने मैन और एनिमल्स के ऊपर बनाई थी तो दे अस शो द प्रोग्रेस दे डिड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर. प्रोबेबली द मोस्ट फेमस आर्ट पीस फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल. अगर हम सबसे मेन आर्ट पीस की बात करें जो उन्होंने बनाया था
So it was a picture of bronze dancing girl which was discovered in Mohenjo-daro. The stone sculpture of a bearded man found in Mohenjo-daro is another well-known piece of art. और अगर हम किसी दूसरे स्कल्पचर की बात करें जो कि मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, सो इट वॉज बियर्ड मैन स्कल्पचर. द फेस हैज़ अ बियर्ड विद द अपर लिप शेव्ड. उस पिक्चर में क्या था? देयर वॉज अ मैन हु हैज़ अ बियर्ड विद अपर लिप शेव्ड. द हाफ क्लोज आइज माइट इंडिकेट अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन. और उसकी जो एक आइज थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, विच वॉज शोइंग द साइट ऑफ मेडिटेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट pottery. Most part of the Harappan pottery is plain. उनका जितना भी मेन पार्ट होता था वो प्लेन होता था, but a substantial part is painted decoration. और कुछ कुछ पार्ट्स को वो डेकोरेशन से डेकोरेट कर देते थे. The painted decoration consisted of horizontal lines of varied thickness, left leaf pattern, स्केल, पाम एंड पीपल वर्क. और किसमें क्या करते थे? कभी कभी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देते थे, लीफ पैटर्न बना देते थे, या फिर पाम एंड पीपल वर्क कर दिया करते थे. बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स आर ऑल्सो शोन. जिस पर वो क्या करते थे? कभी कभी बर्ड्स, फिश या फिर एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे. नाउ वी विल रीड अबाउट ज्वेलरी मेकिंग. The jewelers use metals such as gold, silver, bronze and copper for manufacturing various ornaments. अगर हम ज्वेलरी मेकिंग की बात करें तो वो सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर और बाकी सारे ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे. वेरियस स्टोन सच एज कैरोलिन, स्टेटाइट, एगेट, कैलडोनी, जैस्पर एक्सेट्रा. बाकी जितने भी हमारे मेटल्स थे वो उनका यूज़ करते थे. इट वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बीड्स. जिससे क्या होता था? वो बीड्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे. अमंग द वेरियस ऑर्नामेंट्स, फिलेट्स, नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स and armlets were worn by both men and women. अगर हम बाकी सारे ज्वेलरीज की बात करें तो उनमें क्या क्या मेन था? नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स, आर्मलेट्स. इट वॉज worn by both men and women. While girdles, earrings, bangles and anklets worn by women's. Now we will talk about toy making. A number of toys and dolls have been found at various places mastery in this craft. अगर हम टॉय मेकिंग की बात करें तो वहाँ पर मेन हो या फिर वुमेन हो, दे ऑल वर मास्टर इन देयर स्किल. जनरली टॉयज वर क्ले मॉडल्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, मेन, वुमेन, रैटल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्ड्स. अगर हम बात करें टॉयज की तो वो ज़्यादातर क्ले मॉडल से बनाए जाते थे, वेदर इट इज़ बर्ड, एनिमल, मेन, वुमेन एक्सेट्रा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेंटिंग्स. द इंडस वैली पीपल हैड अटेन्ड perfection in the art of painting also. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों की बात करें तो they were very well versed in the painting and artwork. They drew different kinds of figures and designs on earthenwares and utensils. वो क्या करते थे? Utensils और जो बाकी चीज़ें होती थी उन पर भी चीज़ें ड्रॉ करने लगे थे. They were well versed also in drawing figures of both men and animal. वो किस में अच्छे से थे? They all were very much skilled in the drawing of men or animals. Now we will talk about carving. Seals with carved animals and inscriptions represent the most remarkable feature of the Harappan art of carving. अगर हम carving की बात करें यानी कि किस तरीके से सिक्कों को बनाया जाता था, चीज़ों को गूंदा जाता था, that is called carving. As you can see, it is Harappan seal carrying form of writing. तो उसमें बाकी सारे remarkable features थे जो उस टाइम पर represent किए जाते थे. On the figure of a humped bull which is superb and full of realism, the muscles ripping under the skin and the hump dropping at the back are seen. As you can see in the picture, उसका जो hump है it is already curved and you can see the lines of muscle under the skin. Now we will talk about art of writing. कि उनको किस तरह की writing करना आता था. They all knew about the act of writing. The Harappans had developed the art of writing and used पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. वो क्या करते थे? जितने भी हरप्पन लोग थे उनको राइटिंग करना आता था और उन्होंने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. द फेरेमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर द स्कॉलर्स. अगर हम डेसिफेरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट की बात करें तो वो आज भी स्कॉलर्स के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है. द नंबर ऑफ साइंस एस्टिमेटेड बाय वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट इन द इंडस स्क्रिप्ट वेरीज. अगर हम बात करें अलग अलग साइंस की तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी बताया जाता है इंडस वैली के बारे में वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है.
A group of Soviet scholars have concluded that the language is closer to Dravidian than to any other known languages. अगर हम सोवियत स्कॉलर्स की बात करें तो उनके बेस पर अगर हम देखें तो क्या पता चलता है कि उनके द्वारा जो लैंग्वेज थी जो यूज़ की जाती थी इट वॉज नोन बाय अदर्स ऑल्सो. Seals and their importance. More than 2,000 seals have been found from the Harappan settlements. अगर हम सील्स की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा सील्स वहाँ पर देखी जाती थी. They are considered the outstanding contribution of the Harappan civilization to ancient craftsmanship. अगर हम बात करें उनके हड़प्पन लोगों के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की तो वो एंशियंट क्राफ्टमैनशिप में भी देखा जा सकता है. They were generally square in shape. वो शेप में स्क्वायर होते थे and made up of setite, fins, ivory, etc. Some round seals also have been found. कुछ round seals भी वहाँ देखने को मिलती थी. The designs on the seals include a wide range of animals. अगर हम बात करें seals की तो सबसे ज़्यादा animal से बनी हुई seals देखी जाती थी. Some seals have only scripts carved on them. कुछ seals ऐसी होती थी जिनमें केवल क्या होता था ह्यूमन की या फिर जो बाकी चीज़ें होती थी वो उन पर बनी होती थी, कुछ स्क्रिप्ट लिखी होती थी. एंड सम अदर्स वेयर ह्यूमन एंड सेमी ह्यूमन फॉर्म. और कुछ में क्या होता था ह्यूमन और सेमी ह्यूमन्स की जो सील्स होती थी वो भी देखी जाती थी. Among the 2000 odd seals, the most remarkable is a three-faced deity, Pashupati Shiva, wearing a horned head dress, seated cross-legged on a throne and surrounded by animals. As you can see in the picture, जितनी भी हमारे क्या हैं उनके जो लेग क्रॉस होते थे काफ़ी सारी पशुपति शिवा की पिक्चर देखी जाती थी जो कि एक थ्रोन पर बैठे होते थे. एंड ही वॉज द डीटी एट दैट टाइम. इट वॉज द पिक्चर ऑफ पशुपति शिवा. उनके आसपास क्या था ही वॉज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ एनिमल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. द ruins of Harappa, especially those of Mohenjo-daro, throw a good deal of light on the social and economic life of the Indus Valley people. अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पर क्या देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैसी लाइफ थी उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला गया है एंड उससे हमें उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी नॉलेज मिली है. नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस एंड ड्रेस. From the discovery of many spindles and wools in the houses of the Indus Valley, it is evident that spinning of cotton and wool was very common. अगर हम उनके क्लोथिंग स्टाइल की बात करें तो इससे ये पता चलता है कि वो कॉटन की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे. कॉटन का स्पिनिंग करना, वूल को यूज़ करना, इट वॉज वेरी कॉमन फॉर देम. A study of sculpture and terracotta figurines give us some idea about dresses and fashion. और अगर हम उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि वो किस तरह का फैशन और ड्रेसेस फॉलो करते थे. वी कैन गेट अ आइडिया अबाउट दैट. Men are mostly shown wearing a dress which would be wrapped around the lower half of the body with one hand worn over the left shoulder. अगर हम men के ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उनके क्लोथिंग स्टाइल की बात करें तो वो क्या करते थे एक ऐसा राउंड क्लोथ्स पहनते थे जो कि उनके हाफ बॉडी को क्या करता था कवर करता था और एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक कवर हो जाता था. द अदर ड्रेस वॉज अ किल्ट एंड अ शर्ट वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वीमेन. और दूसरी ड्रेस थी किल्ट जिसको मैन और वीमेन दोनों ही वॉर्न करते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट फूड हैबिट्स. द हड़प्पन्स एट व्हीट, बार्ले एंड पीज. वो क्या खाते थे बार्ले, व्हीट और पीज खाते थे. वी डू नॉट नो वेदर दे वर फेमिलियर विद शुगर केन टू गेट शुगर. हम ये नहीं जानते हैं कि क्या उन्हें पता था कि शुगर केन से भी चीज़ों के अंदर शुगरी टेस्ट लाया जा सकता है. They might have used honey to sweeten their food. वो क्या करते थे अपने फूड को स्वीट करने के लिए उसके अंदर हनी मिक्स करते थे. They also ate bananas, pomegranates, melons, lemons, figs and mangoes. वो ये सारे फ्रूट्स खाते थे. Apart from this, they seem to have relished meat also. और इस सब के बाद वो क्या खाते थे They also eat meat. Now we will talk about amusement. A large number of toys and objects used in games. वो क्या करते थे काफ़ी ज़्यादा गेम्स और जो टॉयज़ होते थे उनका यूज़ करते थे. Which have been unearthed from all the important sites और जो कि हमें बाकी अदर साइट से भी देखने को मिलते हैं. They show that the people were aware of the importance of play and pastime. इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर लोगों को खेलने की और प्लेइंग की वैल्यू भी पता थी. The discovery of pair of castanets clearly proved their interest in music. अगर हम बात करें कैस्टनेट्स की तो उससे क्या पता चलता है कि उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूजिक में भी देखने को मिलता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर ऑक्यूपेशन.
द हड़प्पन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन इरीगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर। अगर हम हड़प्पन पीपल की बात करें तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। कैटल रियरिंग, प्रोफिशिएंसी इन वेरियस क्राफ्ट्स एंड ब्रिक ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इसके साथ साथ वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट वर्क करते थे और ब्रिक्स में ट्रेड करते थे। राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीजन। सम ऑफ द हड़प्पन आर्ट इज रिलीजियस इन नेचर। अगर हम बात करें तो जो भी क्राफ्ट वर्क होता था वो रिलीजियस वे में किया जाता था। 3 seals show a male figure who seems to be a remote ancestors of the later Hindu god Pashupati, which is another name of Shiva। अगर हम 3 सील्स की बात करें जिस पर एक फिगर ड्रॉ होती थी, उसको क्या किया जाता था, उनको माना जाता था कि वो उनके एंसेस्टर से रिलेट करता है, जो कि उन्होंने बाद में एक हिंदू गॉड को मानना स्टार्ट किया। वो थे हमारे लॉर्ड शिवा, विच मीन्स पशुपति। द फिगर वियर्स द हॉर्न headdress associated with Indian veneration of the bull and site in the yoga position with feet tucked under him। अगर हम वहाँ की सील की बात करें, कैसी फिगर बनाई जाती थी, जो कि एक हॉर्न की तरह ड्रेस पहने हुए होती थी और उनके जो इंडियन वेरिनेशन होता था वहाँ पर बुल बना होता था और वो अपने फीट को एक योगा पोजीशन में करके बैठे हुए होते थे। दैट कैरेक्टराइज इंडियन वर्शिप, जिससे पता चलता है कि लोग इंडियन वर्शिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। पीपल यूज टू बिलीव इन फीमेल एनर्जी। उस टाइम पर लोग क्या करते थे, फीमेल एनर्जी में बिलीव करते थे। दे कंसीडर्ड इट एज अ सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। वो मानते थे इसको, एक सारी जितनी भी क्रिएशन है कि उसी से हमें मिलती है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर इज दैट ऑफ मदर गॉडेस। और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली फिगर थी जिसको वो यूज़ करते थे वो थी मदर गॉडेस की फिगर। द हड़प्पन्स ऑल्सो यूज टू वर्शिप ट्रीज, स्टोन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो हड़प्पन लोग थे वो क्या करते थे, ट्री की भी पूजा करते थे, स्टोन्स को बहुत मानते थे और एनिमल और बर्ड्स को ज़्यादा वर्शिप किया करते थे। द हम्प्ड बुल वॉज वर्शिप्ड बाय देम। और एक हम्प निकला हुआ बुल था जिसको वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे। द पीपल ट्री वॉज सैक्रीड फॉर देम। और वो पीपल ट्री को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। द डोव वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड। और वो हंस की भी पूजा किया करते थे। फ्रॉम द एक्सकेवेशन अ नंबर ऑफ पोट्री, ऑर्नामेंट्स एंड मिरर्स इन द ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड। अगर हम एक्सकेवेशंस की बात करें तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, मिरर्स, पॉटरी, ये सब चीज़ें वहाँ पर खुदाई करके मिली हैं। विच प्रूव दैट द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जिससे ये प्रूव होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जीवन के बाद, जो हमारी मृत्यु होती है उसके बाद भी हमारी एक अलग लाइफ होती है। सो दे बिलीव द लाइफ आफ्टर डेथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट commercial relations. The Indus Valley people had maintained both internal and external trade relations. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन किया। टिम्बर फ्रॉम द हिमालयाज वॉज एक्सचेंज फॉर मेटल एंड जेम्स। अगर हम बात करें, टिम्बर इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग मेटल्स एंड जेम्स। तो वो क्या करते थे, उसका एक्सचेंज किया करते थे। दे प्रोबेबली ट्रेडेड also gold, silver, copper, lapis lazuli, stone beads, ivory combs, ornaments, inlays, eye paints, spices and pearls। तो वो क्या करते थे, इन सब मेटल्स का यूज करते थे। The discovery of Harappan seals in many West Asian sites confirm some sort of commercial contact between India and her western neighbors। अगर हम हड़प्पन सील्स की बात करें, जब उनकी डिस्कवरी की गई तो इससे हमें ये पता चला कि जितनी भी हमारी एशियन साइट्स होती हैं उन्होंने हमारी इंडिया और उसके जितने भी वेस्टर्न नेबर्स हैं उनके बीच में काफ़ी कमर्शियल रिलेशन मेंटेन किया हुआ है। लोथल, सुरकोटडा एंड बालाकोट वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स from where these might have found their way to Mesopotamia and other West Asian sites। अगर हम लोथल, सुरकोटडा या फिर बालाकोट जैसी प्लेसेस की बात करें तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स थे जहाँ से मेसोपोटामिया और एशिया जाने की जो साइट्स होती हैं वहाँ का रास्ता मिलता है। मोस्ट ऑफ सो फार एक्सकेवेटेड हड़प्पन टाउन्स गिव अ लुक ऑफ मटीरियल्स। अगर हम बात करें, जितना भी एक्सकेवेशन वर्क हड़प्पन टाउन में किया गया था तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है वो हमें देखने को मिला था। सो दे गॉट material prosperity which seems to have been the result of increasing overseas as well as inland trade। जिससे ये पता चलता है मटेरियल को देखकर कि वो लोग बहुत अच्छे से क्या करते थे, ट्रेड में चीज़ों को डील किया करते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम अबाउट 2500 BC to about 1500 BC. Various causes have been adduced for its weakening and ultimate collapse. अगर हम बात करें उनके काफ़ी सारे कारण की कि क्या रीज़न रहे थे, तो वो उनका था काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट और उनका आपस में ही कोलैप्स होना. राइट. द एरिया में हैव बीन स्लोली बरीड अंडर मड बाय रिपीटेड फ्लड्स पॉसिबली कॉज्ड बाय एन अर्थ इरप्शन एट द इंडस रिवर. अगर हम बात करें वहाँ के कुछ एरियाज़ की, वो किस तरीके से ज़मीन में दब गए थे, तो कुछ हमारे नेचुरली फ्लड्स आए थे और या फिर हमारा जो अर्थ इरप्शन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर की वजह से हुआ था. इट वॉज द साउथ ऑफ मोहनजोदारो, और वो कौन सा एरिया था? मोहनजोदारो का साउथ पार्ट. ईच टाइम द इम्प्रूव्ड पीपल रिबिल्ट देयर होम्स विद लेस स्किल एंड केयर. अगर हम बात करें तो जब डिक्लाइन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी स्किल्स के थ्रू उन टूटे हुए घरों को दोबारा से बनाया और खुद को सेटल किया. द वंस फाइन हाउसेज वर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल स्लम्प अपार्टमेंट्स एंड द फोर्ट्रेस सीटाडेल वर अलाउड टू डिसअपीयर बीनीथ डिब्रिस. अगर हम बात करें कुछ फाइन हाउसेस की, तो उनको रीबिल्ड कर लिया गया, कुछ वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ब्रोक हो गए, और फिर क्या हुआ, जितने भी सीटाडेल वाले फोर्ट्रेस थे उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें डिसअपीयर हो गई थी उनको रीबिल्ड करने का अलाउ किया. सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द इन्वेडिंग आर्यंस डिस्ट्रॉयड द इंडस सेटलमेंट्स. कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जितने भी आर्यंस हुए हैं उन्होंने ही सीटाडेल एरिया को ख़त्म किया था. एंड द हड़प्पन कल्चरल ट्रेडिशन, और जिस वजह से क्या हुआ, जो हड़प्पन कल्चर था उसको वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे. हीप्स ऑफ डिस्टॉर्टेड स्केलेटन्स, सम ऑफ देम बियरिंग द मार्क्स ऑफ स्वॉर्ड और एक्स ब्लोज, बियर विटनेस to the massacre of which the inhabitants of Mohenjo-daro were finally victims. अगर हम कुछ रीजंस की बात करें तो वहाँ पर क्या था, जैसे स्वॉर्ड होते हैं, एक्सेस होते हैं, उनके रिमेन्स हमें देखने को मिले. और अगर हम विटनेस की बात करें तो वहाँ पर मोहनजोदारो को क्या माना गया, उसका विक्टिम माना गया, वो शिकार हो चुका था मोहनजोदारो. स्कॉलर्स हैव conjectured that Indo-European raiders may have swept down from the Iranian plateau in the west. अगर हम स्कॉलर्स की माने तो उनका ये कहना था कि जितने भी हमारे ईरानीज हुए थे उस प्लेट्यू में, उन्होंने क्या किया था, इंडो यूरोपियन चीज़ों को क्या कर दिया था, वहाँ पर ख़त्म कर दिया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या योगदान रहा था, वी विल लुक आफ्टर दैट. The Indus Valley people contributed a lot in every field. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या देखा था बेटा, हर फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा सहयोग किया था. They gave to the world its earliest cities with well town planning. उन्होंने क्या किया, इस वर्ल्ड को बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ सिटीज़ प्रोवाइड कराई थी. The Harappan way of making baked pottery, bricks, beads, jewelry, textile, etc. और जितने भी हड़प्पन लोग थे उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को मेक करना आता था, वेदर इट इज़ पॉटरी मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग और टेक्सटाइल मेकिंग. इट वॉज अडॉप्टेड इन द लेटर सिविलाइजेशन, और ये लेटर वैदिक पीरियड में एक्सेप्ट किया गया था. राइट. इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द हड़प्पन्स वॉज द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. और अगर हम उनकी सब अचीवमेंट्स की बात करें तो उनमें से कॉटन का जो ट्रेड था या फिर यूज़ था, कल्टिवेशन था, वो सबसे ज़्यादा उनका बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. द फाउंडेशन of India's brisk maritime trade with Central and West Asia and was also led by the Harappan people. अगर हम इंडिया के brisk maritime की बात करें तो वो किसके द्वारा कंट्रोल था बेटा, so it was led by Central and West Asia and the Harappan people. Thus, the Harappan civilization remained a source of the civilization process. अगर हम हड़प्पन civilization की बात करें तो वो अभी भी क्या थी, एक हड़प्पन लोगों का जो एक सोर्स होता था कि सिविलाइजेशन को हमें और भी ज़्यादा आगे प्रोसेस करना है, तो वो उसका एक सोर्स मानी जाती थी. एंड मैनी ऑफ इट्स फीचर्स वर अमालगमेटेड इन द रैप एंड वूफ ऑफ लेटर इंडियन सिविलाइजेशन. और अगर हम बात करें लेटर इंडियन सिविलाइजेशन की या बाकी अदर फीचर्स की, तो वो भी उसके अंदर रैप्ड हो चुके थे. राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पा and the Aryan civilization. It is all about Harappans and it is all about Aryans. So here you have to read the table carefully कि हड़प्पन्स लोग क्या क्या फॉलो करते थे और जो आर्यंस होते थे वो क्या क्या फॉलो करते थे. So here it is a table given here. Please read it carefully. So dear students, today we will start with the exercise part of chapter 4.
A dockyard has been found at the Indus Valley site of Harappa. Toys found at Indus Valley civilization were made of terracotta. Pashupati is known as Shiva. Now we will start with fill in the blanks and true false option of this chapter. The houses in the Harappan cities were built of bricks. So first option will be bricks. The city of Harappa was situated in Punjab. So second option will be Punjab. The grain was stored in the granaries. Grains को कहाँ पर store करते थे? Granaries में. Dash are considered the outstanding contribution of the Harappan civilization to India ancient craftsmanship. So it is seals. So fourth option will be seals. The Harappan civilization declined around 1500 BC. So we have completed fill in the blanks. Now we will proceed with true false option. The Harappan civilization had well planned cities. Yes, they have true and good planning over there. We can understand what is inscribed on the seal of the Harappan civilization. So answer will be true. The Harappan people worshipped Pashupati Shiva. Yes, so answer will be true. The Harappan civilization was a rural civilization. Yes, because they do agriculture. The Harappans were warrior-like people. So answer will be true. So the remaining part you have to attempt by your own. Thanks for watching this video. Stay tuned for new video.